मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इस रोल ने मुझे सेलेक्ट किया था। आप ऑडियंस को डिसअपॉइंट करते अगर आप स्क्रीन पे नहीं आते तो? आपके अंदर अगर जुनून की हद तक इस प्रोफेशन के लिए प्यार नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइए। The role of JK in Family Man took you from somewhere to everywhere. जब आपका दौर बुरा चल रहा होता है तो आपको एक वो रहता है कि यार ये इतना अच्छा है कि ये मेरे साथ में होने नहीं वाला है। So when you got जब तक है जान, what was the feeling? Could you accept it? Hi everyone, I'm Mohsin Ahmed. Welcome to Self Discovery Podcast. Today we have an absolute gem from the world of Indian entertainment joining us. The incomparable Sharib Hashmi. If you have watched The Family Man, you already know the magic this man brings to the screen as JK. A performance that not only won hearts but also earned him the prestigious Filmfare OTT Award for Best Supporting Role. Best actor in a supporting role in a drama series, male, goes to But Sharib is more than just one memorable role. He is a rare breed of artist who excels in multiple creative domains. अगर दोस्तों के बीच में अगर इंटरेस्ट आ गया ना भाभी, तो दोस्ती में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या? अच्छी बात बोली है। An accomplished actor, a skilled writer, a visionary producer and a thoughtful director. What makes him truly special is his extraordinary ability to find that sweet spot between humor and heart. I'll have a pasta. Sure, sir. Which one? Aglio, olio. Alio olio, sir. Anything to drink, sir? पर जब भी तेरा ये पागलपन दूर हो जाए ना तो वापस आ जाइए भाई। दोनों भाई मिलके पूरे लंदन में रेस्टोरेंट खोल देंगे। तो पहले टैक्स की छोड़ी बनकर खबीस। His comic timing is nothing short of phenomenal, delivered with such natural ease that it makes you forget you're watching an actor at work. What I particularly admire about Sharib is how he brings authenticity to every character he portrays. Whether he's making you laugh with his impeccable wit and comic timing or moving you with a powerful dramatic scene, there's always truth in his performance. Today we are privileged and honored to have with us a man who doesn't just wear multiple hats in the entertainment industry, he wears them all with distinction and brings his unique creative vision to every project he touches. Welcome Sharib, how are you? Thank you so much for such a beautiful introduction. Thank you, Mosina. Thank you so much for coming to our show, and I'm sure that there's a lot that you would tell us which will really help us in our understanding cinema as well as your work that you're doing. तो आप बताइए कि आपको ये पहले कब पता चला कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और आपने उसको करियर बनाने की सोची? ये एक्चुअली पता तो मुझे बचपन से मुझे था कि मुझे बनना है, कुछ मतलब एक्टिंग करनी है, लेकिन उसे डिसाइड करने में मैंने बहुत टाइम ले लिया। मतलब आई स्टार्टेड परस्यूइंग एक्टिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 33। तो उस वक्त मुझे मतलब आई फाउंड माई ट्रू कॉलिंग कि हाँ दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू एंड दिस इज़ वॉट आई एम मेड फॉर। तो वो बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ लाइफ में। पता था लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हिम्मत नहीं थी और थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैड अ लाइक ह्यूज कॉम्प्लेक्स रिगार्डिंग माई हाइट, माई लुक्स। तो उस वजह से मैं कभी ये कर नहीं पाया कि यार मुझे एक्टिंग में मेरा कुछ होगा नहीं। सो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन आई शिफ्टेड टू राइटिंग। और बहुत टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार एक बार एक्टिंग को मौका देना पड़ेगा, और अगर अभी नहीं दिया तो फिर लेट हो जाएगा। आप ऑडियंस को डिसअपॉइंट करते अगर आप स्क्रीन पे नहीं आते तो, you know, you would have really made us disappointed because the roles that you play is so authentic. It connects with the audience instantly. आपको ये किसी ने पहले बोला कि आप एक्टिंग में जाओ? Is there an inspiration या आपने खुद डिसाइड किया नहीं I'll take the plunge and I'll go ahead and I'll audition? मैं एक्चुअली जब मैं लिख रहा था तो उसमें थोड़ा एक्टिंग मेरे लाइफ में वो वहाँ से आना शुरू हो गई थी। बैकडोर एंट्री मारी एक्टिंग ने मेरी लाइफ में। तो मैं MTV में एज ए राइटर काम करता था, तो वहाँ पर मैं जब स्क्रिप्ट सुनाता था तो हम वहाँ पे फ़नी स्केच कॉमेडीज़ और वो सब लिखा करते थे। तो जब मैं नरेट करता था तो वो कहते थे यार ये कैरेक्टर तू कर ले। तो वो वैसे मैं मतलब स्पूफी शोज़ वो सब में मैं एक्टिंग करने लगा। बट आई यूज़ टू इन्जॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अ लॉट। और मुझे ऐसा लगता था आज मेरी एक एक्स्ट्रा छुट्टी है,
सैटरडे संडे के अलावा और मैंने बहुत इन्जॉय करना शुरू किया। बट तभी भी ऐसा कोई दूर दूर तक इरादा नहीं था कि एक्टिंग करनी है, लेकिन हाँ एक्टिंग ऐसे थोड़ी थोड़ी होती रही लाइफ में। मैं MTV बकरा एक काफ़ी पॉपुलर शो था MTV का, जिसमें मैंने काफ़ी एपिसोड्स किए, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मुझे एक्टिंग आती है। एक्टिंग मतलब करना है, ये उसको अपना प्रोफेशन बनाना है, वो थोड़ा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शादी भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो वो मैं उल्टा लोगों को मैं खुद डिस्करेज करता था। कोई मुझे कहता था कि यार मुझे एक्टर बनना है, मैं कहता था भाई यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ है नहीं लाइफ में। खाली ऑडिशन देते रहोगे, एक दिन मैं खुद वो करूँगा, मुझे नहीं पता था। और छोड़ छाड़ के जॉब छोड़ छाड़ के सब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। 2008 दिसंबर में आई क्विट माई जॉब, और तब से फिर ऑडिशंस देने शुरू किए लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। तो आपने जॉब जब क्विट किया तब आपने ये सोचा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, मतलब स्ट्रगल हुई उस टाइम पे आपकी? बहुत ज़्यादा हुई, मतलब वो तो उस वक्त जोश जोश में डिसीजन ले लिया था, लेकिन अगले 3 साल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गए, क्योंकि मैं अकेले नहीं पूरी फैमिली के साथ स्ट्रगल करने निकला था। और मतलब मुझे लगा था कि यार मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, अभी 4 ऑडिशन दूंगा, 8 काम मिलेंगे और 6 महीने की सेविंग्स तो है ही, और उसके अंदर तो मैं मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, मतलब आई केप्ट गिविंग ऑडिशंस एंड आई केप्ट गेटिंग रिजेक्शंस। और वो डेली बेसिस पे जब आपको इतने सारे नो और रिजेक्शंस जब मिलते हैं, तो मतलब इट कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल बीइंग ऑल्सो। बट हम धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको, जो एक्टर्स है ना उनकी चमड़ी जो है मोटी हो जाती है। हमको काफ़ी सारी चीज़ें झेलने की मतलब आदत पड़ जाती है, और उसको किस तरीके से हम मतलब उसको जस्टिफाई करें, उसके हम अपने अपने बहाने निकाल लेते हैं। कि ये क्यों ना हुआ होगा, या तो उस वजह से बहुत, वैसे फाइनेंशियली आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वर वेरी बैड फॉर मी। लेकिन हाँ, मैं उन 3 सालों में फिर भी खुश इसलिए था क्योंकि आई वॉज ऑडिशनिंग, और मुझे ऑडिशन करने में बहुत मज़ा आता था। मेरे लिए तो मतलब जब मुझे कोई ऑडिशन का कॉल आता था, मुझे लगता था एक काम आया है, और मैं वो काम के लिए आज जा रहा हूँ, और मतलब मैं उसमें भी मतलब अपना पूरा 100% दिया करता था 3 साल तक। लेकिन इतनी हालत बुरी हो गई थी कि मुझे फिर से एक नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि जितने में सेविंग्स थी वो तो ख़त्म हो गई थी, मुझ पे कर्ज़ों का मतलब एक पूरा बहुत कर्ज़ों में डूब गया था। तो आई हैड टू टेक अप अ जॉब अगेन। बट उस नौकरी में 3 महीने हुए थे कि मुझे शानू शर्मा के यहाँ से फ़ोन आया, ये जब तक है जान के ऑडिशन के लिए। और उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए टेस्ट किया, और उसी दौरान फिल्मिस्तान पर हम काम कर रहे थे, नितिन कक्कर और मैं, वो लिख रहे थे और मैं उनमें उसमें उनको हेल्प कर रहा था। तो नितिन को भी एक प्रोड्यूसर मिल गए, और उन्होंने मुझे मेन लीड के लिए ऑडिशन करने को कहा, मैं उसमें भी सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे मतलब ये दोनों चीज़ें हुई, और फिर ऊपर वाले की दया से मतलब एक मेरा करियर टेक ऑफ हुआ। गट फीलिंग थी आप में कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मैं इसी को परसू करूंगा, मतलब एक्टिंग इज माय कॉलिंग, ऐसे गट फीलिंग थी? गट फीलिंग तो थी, वो तो था कि मतलब उस वक्त भी जब मैंने नौकरी की थी, तो वो मेरे ख्याल से वो मैंने टेम्प्रेरी ही सोचा था कि थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा एक ईज़ हो जाए, और थोड़ा एक वो क्या कहते हैं उसको, वो रिफ्यूल करने के लिए पेट्रोल गैस स्टेशन पे मैं रुका था, जहाँ पे थोड़ा पेट्रोल भराने के लिए, फिर वापस गाड़ी शुरू करने वाला था, और उसी दौरान ये दोनों चीज़ें मिली। और हाँ मतलब और कुछ आता नहीं है, क्योंकि मैं जो मैंने जॉब ज्वाइन भी किया था, वहाँ पर मैं रोज़ मन मार के जाता था एकदम, और मैं बिल्कुल खुश नहीं था, ना मैं काम में अपने अच्छा कर रहा था, और ना मैं खुश था, ना मैं दूसरों को खुश कर पा रहा था। तो वो बहुत ही बुरे 3-4 महीने थे मेरे, जो भी 4-5 महीने वहाँ पर मैंने जो गुजारे। So when you got जब तक है जान, what was the feeling? Could you digest it, accept it, or were you like aware कि हो गया है अब ये? मतलब इतना, क्योंकि जब तक है जान का जब मुझे ऑडिशन आया था, तब मैं नौकरी पर था, और उस वक्त बहुत सारे राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए थे, कुछ 5 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए, और उसके बाद में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, किसी और को कास्ट कर लिया था। तो और मैंने कहा कि यार अब इतना हो चुका है, हो सकता है कि मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और नौकरी चल ही रही थी। तभी एक दिन मुझे दोबारा फ़ोन आया YRF से,
और इस बार मुझे यश जी के जो उस वक्त असिस्टेंट थे अक्षत कपिल, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि एक बार और ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो मैं इस बार YRF के ऑफिस गया और वहाँ पर ऑडिशन दिया। ऑडिशन देके ऑफिस अपने पहुँचा ही था कि आधे घंटे में फ़ोन आया कि हम परसों से शूट कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए हैं इस रोल के लिए। और तो मेरे मतलब पैरों तले तब ज़मीन खिसकी कि यार ये तो हो रहा है कि यश जी डायरेक्ट करने वाले हैं, शाहरुख खान साहब हैं, कटरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा है। Right. और मतलब मेरे लिए तो बहुत पूरा एक ड्रीम कम ट्रू था ये, ऐसा सपना जो मतलब मैंने सच में देखा था कि मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ और इनके साथ बातें कर रहा हूँ। और सडनली आई वाज ऑन द सेट्स ऑफ जब तक है जान, जहाँ पर एक तरफ यश जी खड़े हैं अपने असिस्टेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो एक तरफ आदित्य चोपड़ा साहब हैं वो किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, एक तरफ मनीष मल्होत्रा जी, अनिल मेहता जी के साथ बात कर रहे हैं जो हम DOP हैं इतने बड़े। तो वो सब देख के तो मैं मतलब मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ फिजिकली। Right. इट वॉज ऑल वेरी सररियल फॉर मी एंड अभी भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ सच में हुआ था कि सपना ही था। But your role was also so beautiful in that movie. It Thank was, you. you were working with such legends. At the same time, आपका रोल भी काफी अच्छा था उसमें, जी काफी लंबा भी था, and it was very हाँ हाँ beautiful. मुझे मतलब मैं वही एक तो इतने सारे लोगों के साथ काम करने का मौका और वो भी इतना अच्छा रोल। मिलना। Yes. मतलब आज भी मुझे काफ़ी लोग जैन के लिए जब DM करते हैं या मैसेज करते हैं या प्रेस करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि मतलब मेहनत वसूल हुई। Absolutely. It is a blessing, and I'm sure there are more blessings on your way. आप शाहरुख खान के साथ आपको काम करके कैसा लगा? मतलब how was he as a actor person? बहुत मतलब बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही प्यारे, और वो इतना स्पेशल फील कराते हैं आपको कि मतलब उन्होंने तो मतलब पहली बार में ही मतलब इतना कंफर्टेबल कर दिया था मुझे। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक किंग खान के साथ में मैं मतलब काम कर रहा हूँ या उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उनके साथ में और आई रियली होप कि हम दोबारा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। अनफॉर्चुनेटली जब तक है जान के बाद कभी मुलाकात भी नहीं हो पाई है मेरी उनसे। ऐसा भी नहीं हुआ कि कहीं पर हम टकराए हों। आई होप कि Someday. इंशाल्लाह 2025 Yes. में ये मौका मिले मुझे। Yes, inshallah, someday it will happen. So tell me one thing. You took up the role of JK. It's an iconic role. It took you from somewhere to everywhere. तो आपको वो रोल जब आप कर रहे थे या आपने सिलेक्ट किया था, आपको लगा था कि ऐसे आइकॉनिक बन जाएगा एंड इट विल बी सो पॉपुलर? एक तो मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इस रोल ने मुझे सेलेक्ट किया था। मैंने ये फिल्मिस्तान और जब तक है जान के बाद एक अगेन आई सॉ रफ पैच इन माय करियर। तो उस दौरान फिर से मतलब मुझे काम नहीं मिल रहा था और फिर से ऑडिशंस के चक्कर शुरू हो गए थे। फिर मुझे एक दिन जब मुकेश छाबड़ा साहब के यहाँ से उनके ऑफिस से जब कॉल आया फैमिली मैन के ऑडिशन के लिए, तो जब मैं वहाँ गया बहुत ही चीज़ें फिर से मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। अमेज़ॉन प्राइम का शो है, राज एंड डी के डायरेक्ट कर रहे हैं, मनोज बाजपेयी साहब मेन लीड कर रहे हैं और मेरा एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। तो और जब मैं ऑडिशन देकर निकला तो मुझे एक बहुत एक सेटिस्फैक्शन था उस दिन, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार आज तो मतलब आई नेल्ड इट इन दी ऑडिशंस। तो वो मुझे एक फीलिंग थी और एक पता नहीं एक इंट्यूशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो ज़िंदगी में एक बदलाव आ सकता है। बट चीज़ें उस वक्त इतनी बुरी चल रही थी कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स में मतलब मैं यहाँ तक पहुँच के एकदम नज़दीक पहुँच के वो चीज़ें नहीं होती थी। एकदम मैं जितना एक्साइटेड था उतना ही एक जो, क्योंकि एक जब आपका दौर बुरा चल रहा होता है तो आपको एक वो रहता है कि यार ये इतना अच्छा है कि ये मेरे साथ में होने नहीं वाला है। True. तो वो चीज़ भी दिमाग में घूम रही थी। बट थैंकफुली हफ्ते 10 दिन बाद मुझे कॉल आया राजन डीके के ऑफिस से और डीके साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने जेके के लिए चुना। और मैं मतलब आई कांट थैंक देम इनफ फॉर गिविंग मी जेके बिकॉज इट चेंज्ड माय लाइफ कम्प्लीटली। राजन डीके, मुकेश छाबड़ा, अपर्णा पुरोहित, अमेज़ॉन प्राइम, जो भी लोग इन्वॉल्व है इस डिसीजन में, मैं उन सब का मतलब शुक्रगुजार हूँ। और मतलब रियली मतलब
फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया, स्कैम के बाद ग्रेट इंडियन मर्डर, और तो चीज़ें जो शुरू हुई, बट लेकिन जो सबसे पहला जो लोगों ने मतलब वो किया वो फैमिली मैन से ही शुरू हुआ। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत ही अच्छा रोल है वो, एंड इट Thank हैज एक्चुअली created a place in everyone's heart, the role of JK in Family Man. So we love to see you, and it's a beautiful, beautiful role. So आप रोल्स कैसे चूज करते हैं? इंट्यूशन यूज करते हैं या थॉट प्रोसेस, और आपको टीम सजेस्ट करता है कि शारिब गो अहेड एंड चूज दिस रोल? हाउ डू यू चूज योर रोल्स? बिकॉज आप बहुत क्रिएटिव है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. So please tell us your process. मैं ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक फॉर्मूला नहीं बनाया है, पर हाँ एक तो कहानी सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस कहानी में मैं कितना, मेरा कैरेक्टर का कितना इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं। बाकी सारी चीज़ें इधर उधर से सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर ये 3 चीज़ें ठीक नहीं है तो फिर बात आगे ही नहीं बढ़ाता मैं फिर क्यों। और बाकी फिर इंट्यूशन पे बहुत मैंने मतलब डिसीजंस लिए हैं, मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस भी लिए हैं, इंट्यूटिव डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे अभी पिछली जो मेरी फिल्म आई थी संगी, वो मैंने बहुत जब मैं उनसे मिला था, हमारे डायरेक्टर से, सुमित कुलकर्णी से, तो उन्होंने भी ऐसा कोई पीछे बहुत काम नहीं किया था, और हमारी ऐसी रैंडम मुलाकात हुई थी। एक मैंने मराठी फिल्म की थी जिसमें वो असिस्टेंट थे और जो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई थी, और वो कई सालों बाद वो फिर से मुझसे मिले, और एक कहानी है उन्होंने बोला, मैंने ऐसी पढ़ी वो, और मुझे इतना मज़ा आया वो पढ़कर। आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड दैट फिल्म, क्योंकि मुझे करते हुए भी वो फिल्म इतना अच्छा लगा, और जब फिल्म बनकर आई वो, तब मुझे उसको मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए। अनफॉर्चुनेटली उसका थिएट्रिकल रिलीज़ उतना अच्छा नहीं था, बट आई एम रियली होपफुल कि जैसी वो OTT पर आएगी, इट्स गोइंग टू फाइंड इट्स राइट ऑडियंस एंड इट्स गोइंग टू डू वेल. Oh, Sangi is a very good movie and it has got very good reviews. बहुत मजा आया आपको करके, जैसे आपने बोला। तो संगी के करते वक्त आपको ये फीलिंग हुआ कि आई हैव रीच्ड अ पोजीशन, अभी ये पोजीशन जैसे जब तक है जहाँ मैं इट वाज गोइंग बैक एंड फोर्थ, फिर आपने बहुत टाइम के बाद में आपने JK का रोल किया, तो आपको ये अभी है फीलिंग कि ऊपर वाले की दुआ है अभी मेरे पास में, एंड आई एम good with my life now? Yes, माशाल्लाह, मतलब आई एम रियली हैप्पी एंड बहुत ग्रैटिट्यूड है, और ऊपर वाले का मतलब सर पे हाथ बरकरार है, और मैं मतलब उसका रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हाँ, मतलब मैं अभी भी मतलब पूरी तरह से कंटेंट नहीं हूँ, मतलब और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे और काम मिले, अभी और अच्छा काम मिले, और जितने काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ काम करने की इच्छा है, तमन्ना है। जैसे दिबाकर बैनर्जी साहब हैं, अभिषेक चौबे जी हैं, अनुराग कश्यप सर हैं, राजकुमार हिरानी सर हैं, श्रीराम राघवन जी हैं विक्रमादित्य मोटवाने, इन सब के साथ में बहुत सारा काम करना है मुझे। Awesome. Very soon. Our wishes are there for you, and I'm sure you will bring beautiful roles into action and make them alive. So, Thank you. amazing. So let's understand this thing. आप creative हैं, and आप producing में भी गए हैं. You are producing also something, some movies. तो creative एक फिल्म बनाई है, हाँ, एक फिल्म प्रोड्यूस की आपने है। मूवी बनाई है? जी जी। Yes. तो क्रिएटिविटी एंड प्रोड्यूसिंग साथ साथ चलता है, या इट इज प्रेशर होता है उसमें, एंड डू यू वांट टू गो अहेड विद प्रोड्यूसिंग इन द फ्यूचर? हाँ, इन द फ्यूचर पता नहीं, लेकिन मतलब यू कैन नेवर से नो कि हो सकता है आगे कुछ ऐसी चीज़ मिले जो फिर मतलब करने की इच्छा हो, और बट प्रोड्यूसिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और मैं अब उतना इक्विप्ड हूँ नहीं। हम 3 दोस्तों ने मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, राम सिंह चार्ली, और हम उस सब्जेक्ट को लेके इतने ज़्यादा पैशनेट थे। नितिन और मैंने ये फिल्म लिखी थी, और जब हम इसको पिच करना हमने शुरू किया तो काफ़ी जो प्रोड्यूसर्स थे वो कह रहे थे कि कहानी अच्छी है, लेकिन हमें कोई ये एक्टर चाहिए या वो एक्टर चाहिए। बट हमारे दिमाग में एक कास्ट थी जिसके साथ में हम बनाना चाहते थे, और नितिन ने कहा, और हम सब ने मिलके फिर डिसाइड किया कि अगर हमको अपनी चीज़ पे भरोसा है
तो क्यों ना हम खुद ही अपना मतलब पैसा वैसा खुद लगा के हम खुद ही प्रोड्यूस करें। और फिर हमने अपनी गाड़ी कमाई इस फिल्म के अंदर डाली और हमने खुद इसे प्रोड्यूस किया और खुद इस फिल्म को मतलब कंप्लीट किया। तो वो डिसीजन भी मतलब एक मतलब उसका पैशन से उसका मतलब वो बेस था उसमें, और एक जो मतलब करने की मतलब जो चाह थी बहुत कुछ। लेकिन जब हमने शूट शुरू किया तब बहुत सारी चीज़ों का मतलब, और जब बनने के बाद में उसे रिलीज़ करने में जो हमें परेशानियां पेश आई मतलब वो एक हम बहुत छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उस हिसाब से। लेकिन हाँ, जब हमने वो फिल्म कंप्लीट की और जब फिल्म देखी और जब वो रिलीज़ हुई और जो उसको रिस्पांस मिला वो बहुत ही प्यारा था। और उसने फिर सारी जितनी भी मतलब हमने उसके पीछे मतलब मुश्किलें झेली थी वो सारी वसूल हो गई। मतलब अगर मैं ज़िंदगी में कोई और फिल्म प्रोड्यूस नहीं भी कर पाया तो मुझे इस बात का मतलब फ़ख्र रहेगा कि मैंने जो फिल्म प्रोड्यूस की उसका नाम राम सिंह चार्ली है। वाओ, ट्रू। सो एक आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अभी एक फिल्म जो मेरी इमीडिएट नेक्स्ट जो रिलीज़ हो रही है वो 7 मार्च को आ रही है, द डिप्लोमैट, जिसमें जॉन इब्राहिम साहब हैं, सादिया ख़तीब हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, मैं हूँ और शिवम नायर सर ने डायरेक्ट किया है उसे। तो वो बहुत मतलब मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है बहुत। थोड़ा सा स्टोरी लाइन बताएंगे? अभी मैं थोड़ा इट इज़ अ लिटिल टू अर्ली, थोड़ा शायद अगले महीने इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा विस्तार में बता पाऊँगा। बट एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। बहुत ही मतलब एक डिफरेंट जॉन इब्राहिम आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे, बहुत ही अलग, जो आपने मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा रोल उन्होंने अब तक कभी निभाया है। अमेजिंग। सो हाउ डू यू कीप गोइंग? यू सेड कि अभी भी यू आर नॉट satisfied. You don't want to be satisfied because creative process will get hampered. How do you keep yourself motivated? आप मतलब ध्यान कैसे करते हैं कि नहीं, मुझे इसी पे फोकस रहना है और मुझे और अच्छी एक्टिंग करनी है और बेटर प्रोजेक्ट्स लेना है? तो what is your creative process and what is your thought process of focus and mindset? नो प्रोसेस मेरा कोई प्रोसेस नहीं है। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ प्रोसेस बिकॉज आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर, ना मेरा थिएटर बैकग्राउंड है। मैंने कुछ भी जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा You're है। an inborn actor actually, untrained नहीं, inborn है आप। वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का मतलब वो गर्व नहीं है। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, इस वजह से मैं मतलब ड्रामा स्कूल या कहीं जा नहीं पाया या एक्टिंग सीख नहीं पाया। लेकिन जॉब पर करते 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 जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरे को एक्टर्स, मेरे डायरेक्टर्स ही मेरे गुरु हैं और उनसे ही बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अगर ट्रेनिंग होती तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता, आई एम श्योर। और मैं मतलब मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने मतलब थोड़ा पहले ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, ताकि मैं FTII या NSD या कहीं पर मतलब कहीं तो जाता मतलब। Does it impact? Because मुझे लगता है कि जो natural होते हैं, all the legends that we see, they never go to school. They haven't been to school. So most of the legends in any field of work, for that matter, not just acting, it is there in a passion, and वो उनका inborn होता है, मतलब वो follow करते हैं, and probably they get their breaks later, but जो सोच होती है वो बहुत पहले से होती है। तो आपको ऐसे अफसोस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इतने नेचुरल हैं एंड यू आर डूइंग सच गुड वर्क एंड यू आर लर्निंग इन द प्रोसेस। सो दैट शुड बी, मतलब माय थॉट प्रोसेस इज दैट। थैंक यू। बट मैं फिर भी लोगों को, जो जो भी एक्टर्स आते हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि जल्दी से अपनी मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक्टिंग करनी है और आप, हाँ, ताकि अपनी कॉलिंग पहचानें और जो भी आप मतलब जहाँ जिस भी फील्ड में आपको जाना है तो उसमें सीख कर एंटर कीजिए। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो हमेशा बेनिफिट करता है और कोई भी मतलब सीखी हुई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। हाँ, अब जो हो गया वो तो हो गया है। तो अब सीख बहुत रहा हूँ, अच्छा हुआ जो भी तब हुआ तक है, सीखता बहुत, रहूंगा। या इट्स वेरी नाइस। तो आप अभी जैसे फ्री टाइम में आप क्या करते हैं शारिब? मैं देखता हूँ बहुत कुछ, मैं कंज्यूम करता हूँ बहुत कंटेंट, सिनेमा, सीरीज़, ये बहुत देखता हूँ। और इस साल मैंने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं पढ़ूँगा भी ज़्यादा, अभी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। और उसके अलावा मुझे लिखना है, इस साल मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है अपनी ख़ुद की,
तो उस पर भी काम अभी शुरू करना है। तो वैसे फ्री टाइम में मोस्टली तो मैं घर पर देखता हूँ और फैमिली के साथ वक्त बिताता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम है तो हम थोड़ा कहीं घूमने भी निकल जाते हैं। Right. तो आप तीन चीजें क्या बताएंगे एस्पायरिंग एक्टर्स को? जैसे एक आपने बोला है कि उनको हुनर पहचानना चाहिए और बहुत पहले से ही उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये बोला है आपने। आप क्या एडवाइस करेंगे? उनको इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए? व्हाट आर योर एडवाइसेस फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स? हु आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक, मैं तो कहूँगा उनको कि अगर बस यहाँ पर आके आपको ऑडिशंस पे ऑडिशंस देने हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा कोई मंत्र नहीं है उसका कि आप ये करेंगे और मतलब 2+2=4 यहाँ पर है नहीं। अगर वो होता तो मैं 10 साल पहले ही मतलब चीज़ें और कर लेता। मैं 10 साल पहले भी काम अच्छा ही कर ही रहा था लेकिन लोगों ने पहचाना फैमिली मैन के ज़रिए। ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई वो नहीं है कि ये मैं बोलूँ और वो मतलब छड़ी घुमाते ही मतलब काम हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप मेहनत लगन से काम करें, जो कि वही है मूल मंत्र इसका, कि आप अपने काम में फोकस रहें और पेशेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई लोग जो यहाँ पर जो नहीं कर पाते हैं काम, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो बीच में हिम्मत हार जाते हैं, और उसमें भी मतलब उनकी गलती नहीं है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। नहीं कर पाया कोई, नहीं कर पाते हैं और वो वापस चले जाते हैं इंडस्ट्री छोड़ के। लेकिन जो टिका रहता है किसी भी तरीके से, उसे मतलब उसका फल मिलता ज़रूर है, देर सवेर मिलता ज़रूर है, लेकिन वो कब तक होगा उसका भी कोई पता नहीं। ये भी नहीं पता कि आप 2 साल तक बहुत पागलों की तरह काम करें और आपको मतलब 2 साल ख़त्म होते ही आपको तीसरे साल की शुरुआत में आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, ये नहीं 3 साल के बाद कि आपको डिग्री मिलनी ही मिलनी है जैसे वो अहमद फराज साहब की एक बहुत ज़बरदस्त शेर है कि, और नसीब का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें, कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा तो वो ये इस हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा बहुत होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी, जिनको मतलब सक्सेस भी मिल जाती है या काम भी मिल जाता है, सक्सेस तो ठीक है, काम मिल जाता है एकदम से, कुछ लोगों को काम मिलने में ही मतलब बहुत वक्त लग जाता है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आप अपनी तरफ से जो आपके बस में है वो करते रहें आपके अंदर अगर जुनून की हद तक इस प्रोफेशन के लिए प्यार नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइए ब्यूटिफुली कंक्लूडेड, ब्यूटिफुल एक्चुअली, बहुत ज़्यादा उम्दा। आप मुझे बस एक चीज़ लास्ट में बोलिए कि आप अपनी हर रोल में ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करते हैं? इन एवरी रोल यू आर दैट ऑथेंटिक सेल्फ। आप ऐसा लगता है कि आप कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं, मतलब यू आर दैट पर्सन। सो हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट? मैं ये तो पता, बड़ा मुश्किल सवाल, मतलब मैं बहुत बेसिक सा इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे तैयारी भी कैसे करते हैं मुझे वो भी नहीं आता। लेकिन हाँ, कहानियाँ जो है मैं वो बहुत सोच समझ के चुनता हूँ, और जो डायरेक्टर हैं उनके साथ में बैठ के, इट्स अ टीम वर्क, तो वो क्या चाहते हैं, मैं उसमें क्या अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ और कैसा वो लगेगा किरदार, तो उसके लिए हमारे मेकअप डिपार्टमेंट साथ में होते हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं, तो वो कॉस्ट्यूम्स हेल्प करते हैं। तो सब मिलके जब एक चीज़ मतलब सब एक पेज पर आते हैं ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ होती है। जब सारे क्रिएटिव एनर्जीज़ जो हैं वो एक पेज पर हैं और सब मतलब उसी दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर चीज़ अच्छी बनती है, और कैरेक्टर या किरदार या कहानी सभी कुछ मतलब फिर खिल के निखर के बाहर आती है। Great. Sharif ji, thank you so much for joining us and Thank you. sharing your beautiful journey. All the very best for your upcoming Thank you. movies, as well as Thank you so much. congratulations for Sangi. I'm sure the moment Thanks a it lot. reaches OTT, it will, create fire Inshallah. amongst all hearts. So thank you, Sharif. थैंक यू सो मच मोहसिना। मैं तो मतलब चाह रहा था कि कब से हम मतलब करें। मैंने पॉडकास्ट देखे, मुझे बहुत पसंद आए थे, और आई रियली वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्जेसन विद यू, एंड फाइनली आई एम ग्लैड दैट आज वो मुमकिन हो पाया। अगर हम आमने सामने होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। But तो बहुत I अच्छा really लगा। Thank enjoyed you the so much. podcast. Thank you. Thank Thank you very much. We have enjoyed the podcast, and I'm sure the audience will also love to see it. Thank you. Thank you.